Hello everyone. So now we are going to read the chapter Deep Water. Here I'll tell you some chapter. Now you can see here on the screen this is photo of William Douglas, who is writer of this chapter Deep Water. And actually Deep Water is an excerpt which is taken from Of Men and Mountains. Of Men and Mountain बुक से एक पार्ट लिया गया है, एक इंसिडेंट है जो आपके सामने यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. So let's start the chapter. So here you can see he is William Douglas. So let's start the chapter. So now the chapter starts when the narrator decided to learn swimming, and what he thought when he was around 10 to 11 years old. At that time he decided to learn to swim, and there was a pool at YMCA. YMCA pool is Young Men's Christian Association. This is the full form of this uh, pool, YMCA. Actually, this offered him a good opportunity to learn swimming. Swimming is in the Yakima River. Actually, this was just near Yakima. वहीं पर ही बना हुआ था ये जो YMCA pool है. तो इसीलिए उन्होंने याकिमा रिवर को डिस्क्राइब करने की कोशिश किया. यू कैन सी हियर ही थॉट टू लर्न स्विमिंग एंड दिस इज याकिमा रिवर. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो जो YMCA pool ही थॉट दिस इज YMCA pool इज क्वाइट सेफ. अभी इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है. एंड जो ये याकिमा जो रिवर है, विच एक्चुअली दिस वॉज वेरी डेंजरस ट्रेचरस बोला गया है आपके बुक में. सो प्लीज लर्न दोज वर्ड्स विच आर गिवन इन योर बुक, क्योंकि आपकी राइटिंग को इन्हांस करते हैं, आपकी राइटिंग जो स्किल होती है उसको बहुत अच्छा करते हैं. तो वेन एवर यू सी अ न्यू वर्ड, उसको डेंजरस की जगह आप ट्रेचरस यूज करेंगे, इट विल बी better. Okay, so क्या हुआ कि his mother actually always used to warn him against this thing, that but the YMCA pool it was safe for swimming. क्योंकि ये जब भी यहाँ पे कोई ड्रॉइंग होती थी तो उनकी मदर उनको हर बार बताया करती थी कि देखो ड्रॉइंग होने वाली है वहां पर, वो ऐसे ऐसे करके. एंड बट ये जो पूल था इट वाज सेफ. क्यों सेफ था? तो क्वेश्चन में बी आस्क्ड रिगार्डिंग टू दिस कि वाई YMCA pool was safe for swimming. So this is the reason, क्योंकि it was 2 to 3 feet deep at the shallow end, and at the deep जो deep side जाते it was only 9 feet. So that is why what he said that it was safe. And the slope, actually drop लिखा हुआ है आपकी बुक में, but the slope जो नीचे जाने वाला slope होता है it was very normal, gradual. तो now William Douglas thought that this is safe, that is why he wanted to learn swimming. But actually he had an aversion, disliking of water from the very beginning. क्यों? एक इंसिडेंट हुआ था कि जब वो अपने फादर के साथ में बीच पर गए थे. ठीक है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ही इज विद हिज फादर. एक्चुअली आई हैव यूज्ड अ photo of I have taken from somewhere. So this is aversion. He developed an aversion when he was only 3 to 4 years old. At that time, when he stood at the beach with his father in California, एक वेव आई, उसने उसको पूरा स्वेप्ड ओवर कर लिया. किसको? इस बच्चे को. ही हैंग्ड ऑन हिज फादर, बट स्टिल बहुत छोटा सा था वो, तो वेव्स काफी बड़ी आती हैं तो पूरा है उसके ऊपर स्वेप्ड ओवर कर दिया. एंड वो ही वॉज कम्प्लीटली बरीड इन द वाटर. पूरे पानी में पूरी तरीके से कवर हो गया था. एंड ही वॉज फ्राइटेड बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, अ लिटिल बॉय एट दैट टाइम. लेकिन उसके फादर उस बात पे हंस रहे थे देख करके, क्योंकि उनके लिए बहुत नॉर्मल था. लेकिन ही हैड अ काइंड ऑफ aversion, डर, जो फियर होता है फ्रॉम वाटर. सो व्हाट ही थॉट टू ओवरकम दिस फ्रॉम दिस फियर, ही थॉट दैट व्हाई शुड नॉट आई लर्न स्विमिंग. So he thought, he started learning at the age of 11. This is you would say कि एक unpleasant incident. So whenever question will be asked कि unpleasant incident क्या था, you will say this was unpleasant incident. Now misadventure क्या हुआ? The narrator was at alone at the pool, and what happened? He did not want to go inside the water because he was alone at the time, and he had that fear of water. So that is why तभी एक लड़का आया, and came a big bully of a boy. बड़ा एक अच्छा उसका जिसका physical जो specimen था, अच्छा physic था उसका. And what he said, hi skinny कह करके, and how would you like to duck, ऐसे कर करके he threw him inside the pool. डीप वाले में, 9 फीट वाले में. ठीक है, ही इज ओनली 11 years old. फेंक दिया उसने उठा करके. एंड ही लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन. नीचे बिल्कुल डर गया था. ही वॉज फ्राइटेंड वेरी, मतलब फ्राइटेंड मतलब समझ ही गए होगे. एंड
But what he thought when he was going down at that time, he made a plan that he would make a big jump and he will touch the bottom. उसने क्या सोचा, एक ऐसे लड़का आया और उसने उसको धक्का दे दिया, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है ये नीचे। बट ही वॉज मेकिंग अ प्लान कि जैसे ही मेरा पैर जो है वो इस पे टच करेगा, व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ बिग जंप। ही ट्राइड, he he tried to come to the surface. He thought that I will lie flat on the water. Finally he would, and he would paddle to the edge of the pool and he will reach there. But this not did not happen actually. Those 9 feet were more like 90. He jumps, his lungs were ready to burst, but when he hit the bottom, he gathered, उसने hit किया bottom को, और he gathered all his strength to come up. पर क्या आया? He opened his eyes but saw nothing but water. He grew very panicky actually and suffocated feel कर रहा था, inhale नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए exhale नहीं कर पा रहा. He did not know anything because he just started swimming. He tried to cry but he could not cry at that time because he was inside the water, and he swallowed lots of water. बहुत सारा water से swallow कर लिया और वो एकदम choke हो गया. Now अब ऊपर गया, ठीक है, ऐसा फील करता है वो कि उसे नीचे कुछ खींच रहा है. अ ग्रेट फोर्स इज पुलिंग हिम अंडर द वाटर. ही वाज गेटिंग डिजी एट दैट टाइम. ही वेंट डाउन एंडलेसली, वापस नीचे गया ये. एंड देन स्टार्क टेरर सीज्ड हिम. हिज आर्म्स वुड नॉट मूव, और उसको बिल्कुल भी, ही वांटेड टू ट्राई शाउट, ही वांटेड टू ट्राई शाउट कॉल फॉर हेल्प, बट नथिंग हैपेंड. नाउ अब सेकंड टाइम ऊपर गया ये, ठीक है. व्हाट ही थॉट कि सेकंड टाइम ये ऊपर गया और सेकंड टाइम पर भी सेम चीज हुई इसके साथ में. अब क्या हुआ, जब ये थर्ड टाइम नीचे हो रहा है, मतलब सेकंड टाइम जब इसने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, सेकंड टाइम तो है, अभी थर्ड टाइम जो है वो नीचे जा रहा है. सेकंड टाइम नीचे जा रहा है और सेकंड टाइम नीचे जाते जाते इसने सोचा कि फिर से एक बिग जंप मारूंगा एंड देन आई विल कम अप. नथिंग हैपेंड. जब ऊपर आया तो सेम थिंग हैपेंड कि वो कुछ ऐसा नहीं हुआ, और फिर वापस नीचे जाने लग गया. नाउ ही इज गोइंग डाउन इन द वाटर एट थर्ड टाइम. ऑल एफर्ट्स सीज्ड, सारे एफर्ट्स उसके खत्म हो गए एंड ही फेल्ट लाइक स्लीपिंग. अब वो थक गया था बहुत बुरे तरीके से. ही वांटेड टू स्लीप, ही वांटेड टू रेस्ट, नथिंग वाज हैपनिंग. उसके पैर बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए थे, उसके जो लेग्स थे दे वर नॉट मूविंग, एंड दे वर नॉट मूविंग एंड दे वर नॉट मूविंग, बिल्कुल उसके कंट्रोल में नहीं थे और वो बहुत बुरे तरीके से टायर्ड हो चुका था. ऑल एफर्ट सीज्ड, खत्म, सब खत्म हो गया था. एंड नाउ ही वाज फीलिंग पीस, रिलैक्स्ड व्हेन ही वाज गोइंग डाउन अगेन, ठीक है. व्हाट ही थॉट, ही एक्सेप्टेड हिज डेथ. हो गया, अब तो मैं नहीं बचने वाला, ठीक है, क्योंकि थर्ड टाइम अब उसके पैर हाथ कांप रहे थे और ही वाज नॉट एबल टू make a again big jump. He did not want to try that. And what he says कि तब तक तो मेरा fear था, he I wanted to, this is about all, ये सारा सब कुछ ना fear का खेल है. आप जब तक किसी चीज से डरते हो ना, तब तक आपको मिलती ही नहीं है. डर खत्म कर दो, नहीं, आप फर्म हो जाओ किसी चीज के लिए, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल इन दैट. यहाँ पर उसकी डेथ हो रही है, वो सोच रहा है कि अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची, 2 बार कोशिश कर ली मैंने, अब सब कुछ खत्म कर दिया. और उसके बाद में ये बेहोश हो जाता है. जब उसकी नींद खुलती है, ही फाउंड अप, पूरी तरीके से नीचे जा रहा है, सी ऑन द स्क्रीन, और अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया है और अब वो समझ चुका है कि अब मैं डूब जाऊंगा. फाइनली जब उसने आंखें खोली, तो व्हाट ही थॉट, व्हाट ही सॉ व्हेन ही वोक अप, he found himself lying on his stomach beside the pool. He was vomiting there. And now the chap, जो लड़का था ना वहां पर खड़ा हुआ था, what he was saying, I was trying to I was just fooling him. फिर किसी ने कहा कि वो तो बेचारा नरेटर, मतलब जो आसपास लोग खड़े थे उन्होंने क्या कहा कि ये जो बच्चा है ये मरने वाला था. द किड, इट वाज ओनली 11 years old, that is why he was only kid, ठीक है ना. तो इसलिए वो लोग क्या बात कर रहे थे कि बेचारा बच्चा मरने वाला था और तुमको मजाक सूझ रहा है, ऑल दीज थिंग्स. नाउ पूरे टाइम डरता रहा बच्चा, पूरे टाइम उसके अंदर फियर जो था वो बहुत बुरी तरीके से अंदर घर कर गया था. फॉर डेज ही वॉज कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड बाय द फियर. हमेशा घर, उस दिन रात को जाके उसने घर पे खाना भी नहीं खाया और लोगों से बचता रहा. एंड ही एक्चुअली ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट वेन एवर ही कुड. ही अवॉइडेड द वाटर. जब भी पानी के पास जाता था ना, इवन वो वॉक करने भी जा रहा था ना, तभी भी वो उसके पैर जो होते थे वो
बिल्कुल फ्रीज हो जाया करते थे, एंड उसके बाद में वो पैरालाइज हो जाते थे, और एकदम जो आइसी हॉरर था उसका, इट यूज टू ग्रैब हिज हार्ट। द फियर स्टेड विद हिम एज द years पास होते गए years, लेकिन वो फियर जो था वो हमेशा वहां पर रहा। नाउ बहुत टाइम हो गया डरते डरते, व्हाट ही थॉट, इंस्ट्रक्टर हायर किया जाए। तो नरेटर गॉट एन इंस्ट्रक्टर, व्हाट ही थॉट कि नाम मेरे फ्रेंड्स जो है वो देखो घूमने जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, एंड आई एम नॉट एबल टू एंजॉय ऑल दिस, व्हाट ही थॉट कि मेरे फ्रेंड्स सब एंजॉय कर रहे हैं, लुक एट हिम दिस द फोटोग्राफ, मेरे फ्रेंड्स जो है वो स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, बाथिंग के लिए जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स फिशिंग के लिए जा रहे हैं, कैनोइंग के लिए जा रहे हैं, बट आई एम नॉट एबल टू डू बिकॉज आई हैव फियर ऑफ वाटर। तो और फियर तक हम कब तक जिएंगे फियर के साथ में, तो ओवरकम करना पड़ेगा भाई, इसको ओवरकम किए बिना नहीं चलेगा। आप सक्सेसफुल नहीं होगे, किसी भी चीज का फियर हो कभी उसे टालो मत कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं, आई विल डू दिस, आई कैन डू दिस। तो बहुत जरूरी, तो उसने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर हायर किया। ठीक है, बड़ा हो गया बच्चा, अब वो बच्चा नहीं रहा, काफी साल हो गए थे, अब वो बड़ा हो गया था। नाउ उसने एक हायर किया इंस्ट्रक्टर, और वो भूल गया, ही प्रैक्टिस 5 days a week। इंस्ट्रक्टर क्या किया करता था, जब डर था उसको तब तक पुटा बेल्ट अराउंड हिम, रोप अटैच टू द बेल्ट, एक रोप थी जो अटैच होती थी बेल्ट से, और एक पुली के थ्रू। और हर ट्रिप के टाइम पर जब भी वो यहाँ से स्विमिंग पूल की एक लाइन से दूसरी लाइन तक जाता था, उस टाइम तक उसके बीच में क्या किया करता था, वो जो उसका ट्रेनर था, इंस्ट्रक्टर था, वो उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ देता था रस्सी को, ताकि थोड़ा नीचे जाए, इसका डर खत्म हो। पर ये तो उसका जो पैनिक हमेशा उसके अंदर रहता था, जैसे ही वो अंदर जाता वो डर जाता था। वो जो हॉन्टेड फियर था वो उसके अंदर अभी भी था। इट वाज 3 months बिफोर, जब 3 months हुए ना, इसके 3 months के पहले, मतलब आज जब ये लिख रहा है तब बता रहा है कि 3 months के पहले धीरे धीरे मेरा जो डर था वो खत्म होना हुआ। और इंस्ट्रक्टर ने उसको क्या क्या चीजें सिखाई, इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखाया, कैसे सिखाया, बिट बाय बिट उसको एक स्विमर बनाया। कैसे बनाया, सबसे पहले ही टॉट हिम हाउ टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, एंड देन कैसे इनहेल करना है, एंड रिपीटेड एक्सरसाइज 100 टाइम उसने ये एक्सरसाइज किया, बिकॉज ही वांटेड, उसके अंदर लगन थी इस डर से ओवरकम करने की। तो आपके अंदर लगन होनी चाहिए किसी चीज को पाने की, सिखाने वाले के अंदर नहीं, आपकी लगन होती है जो आपको कुछ बनाने के लिए, बनने के लिए आपको मोटिवेट करती है। कोई भी नहीं कर सकता, मैं दुनिया में कोई भी इंसान आपको इनकरेज नहीं कर सकता। ये आपके अंदर की चाहत होती है कि नहीं मुझे ये करके दिखाना है दुनिया में, तो उस चीज को बना के रखो अपने अंदर। ठीक है ना, कभी भी अपने अंदर ये चीज मत लाने दो कि मैं ये नहीं कर सकता। यू कैन डू एनीथिंग, जो भी है, जो भी चाहो सब कुछ मिल सकता है। यू हैव टू बी, यू हैव टू बी डिटरमाइंड, आपके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए उस चीज को लेकर के। नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर, उसने इंस्ट्रक्टर ने क्या सिखाया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर टॉट हिम हाउ टू किक विथ हिज लेग्स, लेग की मूवमेंट सिखाई। पहले इनहेल एक्सेल करना सिखाया, देन उसने लेग्स की मूवमेंट सिखाई। देन फॉर वीक्स ही डिड द सेम थिंग, काफी प्रैक्टिस करता रहा, जब देखो तो वो प्रैक्टिस खूब करता था, जिससे वो जल्दी से जल्दी सीख जाए। सबसे पहले जब शुरुआत की उसके लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, दे डिड नॉट मूव, क्योंकि पहले उसके संग इंसिडेंट हो चुका था। बट फाइनली अब धीरे धीरे करके कमांड करना शुरू किया, और अब धीरे धीरे करके वो मैनेज कर लिया उसने अपने पैरों को मूव करना था। इंस्ट्रक्टर टॉट हिम हाउ टू बी अ रियल स्विमर, बहुत अच्छे से सिखाया उसने। बट ही स्टिल फियर टू बी ऑल अलोन, तब तक इंस्ट्रक्टर उसके साथ होता था। जब ये इंस्ट्रक्टर उसके साथ है, ठीक है, सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन जब इंस्ट्रक्टर नहीं हुआ करता था ना, एट दैट टाइम ही वाज ऑलवेज फियर्ड कि नहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर ने उसको प्रॉपर तरीके से, हर तरीके से उसको बहुत मेहनत करके उसको एक स्विमर बनाया। उसने स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने उसको कहा फुल लेंथ पे स्विमिंग करके आओ, और उसके बाद में ही वेंट अप एंड डाउन, एंड देन व्हाट ही सेड आई हैव डन। पर इसका तो टेरर नहीं निकला, हमने तो सिखा दिया आपको। अब आपका दिल क्या कहता है, आप सीख चुके हो उस चीज को, ये आपको डिसाइड करना है कि आर मीन्स व्हाट डू यू थिंक, आर यू परफेक्ट इन दिस थिंग, सो व्हाट डू यू थिंक इट मैटर्स। टीचर ने सिखा दिया, आपको कितना आया, जब तक नहीं आया आप टीचर को बोलते रहो नहीं आया, मुझे अभी और सीखना है और सीखना है, क्योंकि टीचर के पास बहुत नॉलेज होती है, आपको उस नॉलेज को निकालना है। इट इज अप टू यू। ठीक है, आप कितना उनको यूज कर सकते हो। प्लीज अपने टीचर से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछो, और वो डेफिनेटली आंसर देंगे। नहीं आता है वो सोच के आएंगे, समझ के आएंगे, लेकिन वो आंसर करेंगे आपको। ठीक है, तो ये आपके अंदर की चाहत होनी चाहिए, आपके अंदर की हंगर होना चाहिए टू लर्न एनीथिंग। ओके, सो नाउ बट ही स्टिल फियर्ड, अभी भी डर रहा है अकेले जाने में। स्विमर ने कह दिया,
सॉरी इंस्ट्रक्टर ने कह दिया यू हैव लर्न, यू हैव बिकम अ स्विमर, बट व्हाट ही सेड नहीं, अभी भी डर वापस आ जाता है, वो जो डर था ना पानी का वो अभी भी वापस आ जाता है। दिस वेंट ऑन जुलाई अंटिल जुलाई, जुलाई तक इंस्ट्रक्टर ने सिखाया और जुलाई के बाद में उसने कह दिया बस ठीक है अब आप सीख गए नाउ। लेकिन इसके अंदर नहीं माना, इसने क्या कहा ठीक है अगर आपके अकॉर्डिंग सीख गया लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग खुद सीखूंगा। ही वेंट अलोन, कहाँ कहाँ गया, बहुत सारी जगह पे गया, बहुत सारी फिशिंग के लिए गया, लेक वेंटवर्थ गया, डाइव्ड ऑफ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, वहां पर से स्विमिंग किया, एंड ही स्वैम फाइनली ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। अब फियर वापस आया, ठीक है, फियर तो आया, और फियर जब आया व्हाट ही सेड सी व्हाट आई हैव डन। अब you cannot, this terror cannot come inside, no, I am not going to fear you, this you cannot do this thing, आप नहीं कर सकते मुझे। एंड क्या हुआ, डर भाग गया, द फियर फ्लेड एंड ही swam finally he had conquered his fear of water। वो जीत गया उस फियर से। आपको भी जीतना है, आपके एग्जाम से अच्छे नंबर लाना है, अच्छी अच्छी अपनी जो भी आपने एम बनाया उसके लिए फोकस करो और लड़ते रहो। आप फोकस करोगे, डिटर्मिनेशन होगा आपके अंदर, फर्म डिटर्मिनेशन होगा, मेहनत बहुत करनी है। सोच लो अभी से कि भाई मेहनत करनी है, मैंने कमर कस लिया, मैं तो करूंगा मेहनत, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लोग दिख रहे हैं आपको यूट्यूबर, माइंड डाइवर्ट होता है, लोग बहुत दिख रहे हैं जो आराम से डांस कर कर, क्या आप कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, वो सारी चीजें आपके लिए नहीं बनी है ना। एक रिस्पेक्ट जो यूट्यूबर के आसपास लोग फोटो खिंचाते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्ट जो एक अच्छी आईएएस की या सीए की होती है वो हमेशा वही रहती है। लोग लाइन तो उसी के दरवाजे पे लगाते हैं जब उन्हें काम पड़ता है। तो ध्यान रखो इस चीज को कि आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी है, सड़क पे डांस करके बनानी है या फिर कैसे बनानी है, तो अपनी वैल्यू बना के रखो, ठीक है। अपने लिए फर्म डिटर्मिनेशन रखो कि नहीं, आई हैव टू डू दिस थिंग, आई विल नॉट फियर, आई विल नेवर फियर ऑफ दिस थिंग, नहीं मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, हर एक बच्चा कर सकता है। ऐसे जैसे कि विलियम डगलस ने डिटर्मिनेशन किया and he succeeded in this. The experience left a deep meaning. It was a deep meaning. It has a deep meaning for him क्योंकि this was a unique experience for him. It left a deep imprint on his mind. He could never forget it. What he says, it had a deep meaning for me. What he said. क्योंकि आप जब कोई चीज कहते हैं ना, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। आप सक्सीड नहीं हुए, 2 बार सक्सीड नहीं हुआ, एक बार पहले जब 3 साल का था, फिर 10-11 साल का था, लेकिन फिर उसने जीता। सो सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। जो सक्सीड नहीं होते ना, जब वो सक्सेसफुल होते हैं ना, तब वो समझते हैं उसकी अहमियत क्या होती है। सो ही इज अंडरस्टैंडिंग दैट अहमियत, मीनिंग ऑफ दिस सक्सेस। तो इट हैज़ अ डीप मीनिंग फॉर हिम। ही हैड एक्सपीरियंस बोथ द फीलिंग्स एक्चुअली, मरने का भी और मरने के डर का भी। जब तक आप डरते हो ना, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट फियर। और कैसे ओवरकम करोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू कैन ओवरकम फ्रॉम एनीथिंग इफ यू हैव फर्म डिटर्मिनेशन, ठीक है। रेजोल्यूशन कहते हैं ना कि नहीं करके दिखाऊंगा मैं। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मैं दोनों तरीके से फीलिंग को कर सकता था। कौन कौन सी फीलिंग थी, दैट वाज सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द फियर एंड द टेरर दैट फियर कैन प्रोड्यूस। जो फियर है ना, जो वो टेरर प्रोड्यूस करता है, वो भी मैंने सेंसेशन फील किया। 2 बार उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की एट दैट टाइम। आपने देखा 2 बार उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ था, ही कुड नॉट, क्योंकि उसे डर था। जब उसने कहा नहीं, आई ही वॉज डिटरमाइंड कि आई हैव टू लर्न स्विमिंग। वो कितनी जगह सीखने गया, देखा आपने, उसको इंस्ट्रक्टर ने कह दिया कि यू हैव डन, बट स्टिल इतनी जगह आप देख सकते हो, आपके चैप्टर में लिखा हुआ है कितनी जगह उसने सीखा। और फाइनली तब तक सीखा जब तक वो ऐसे करके स्माइल नहीं करने लग गया कि यस आई हैव ओवरकम फ्रॉम दिस फियर ऑफ वाटर। आपको भी पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। आपको जो चैलेंज करता है उसको टेक द चैलेंज, ठीक है, करके दिखाऊंगा, लेके दिखाऊंगा, ठीक है ना। किसी और पर, आपके पेरेंट्स, आपके जो भी कोई क्या कर रहा है क्या, उससे मतलब मत रखो, फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है। अच्छे लगते हैं वो बच्चे जो पढ़ के कुछ बन जाते हैं, जब सामने आते हैं टीचर बहुत प्राउड फील करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीचर भूल जाते हैं, वो टीचर ही जानता है ये चीज़ कि टीचर कितना मिस करते हैं अपने बच्चों को। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए एंड बी सक्सेसफुल।
आपके टीचर्स बहुत खुश होंगे, आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करेंगे। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, दे जस्ट वांट टू सी यू सक्सेसफुल। फर्म डिटर्मिनेशन रखो, रेजोल्यूट रहो अपने गोल के लिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।